धन्य घड़ी धन्य भाग्य हमारे, आज आप हमारे आंगन में पधारे। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। ओम शांति। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीरें बदल दे। कब क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय મહેસાણા સાથે સંયુક્ત ઉપક્રમે મહિલાઓ માટે આયોજિત સેમિનાર સકારાત્મક પરિવર્તન દ્વારા આનંદમય જીવનના કાર્યક્રમમાં વિશ્વ ઉમિયાધામ સંસ્થા મહેસાણા, ધરતી મહિલા પરિવાર મહેસાણા, પતંજલિ મહિલા યોગ સમિતિ મહેસાણા, જાયન્ટ ગ્રુપ મહેસાણા વતી આપ સર્વને આવકારતા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. આપનું સ્વાગત છે, અભિવાદન છે. શબ્દ નથી રહેતા જ્યારે એ દિલના ઉદ્ગાર બની જાય છે. આવો માનવતા મહેમાનોનું શાબ્દિક સ્વાગત કરવા માટે વિશ્વ ઉમિયાધામ ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેરપર્સન માનનીય શારદાબેનને હું વિનંતી કરીશ. ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ. ડાયસ પર વિરાજમાન મહાનુભાવો, આદરણીય રાજયોગિની બ્રહ્માકુમારી ઉષા દીદી, આદરણીય રાજયોગિની બ્રહ્માકુમારી કુસુમ દીદી, માઉન્ટ આબુથી પધારેલ આદરણીય રાજયોગિની બ્રહ્માકુમારી વર્ષા દીદી, આદરણીય રાજયોગિની બ્રહ્માકુમારી વર્ષા દીદી, આ સાથે મારી સાથી મિત્ર ધરતી મહિલા પ્રમુખ માલતીબેન, જાયન્ટ મહિલા પ્રમુખ સરોજબેન, પતંજલિ યોગ મહિલા પ્રભારી અનસુયાબેન, બીકે અશોકભાઈ નથી આવ્યા, અશોકભાઈને પણ હું શાબ્દિક એમને ઉદ્બોધન કરું છું. ધરતી ઉપપ્રમુખ ચંદ્રકાંતભાઈ પટેલ તથા આદરણીય આમંત્રિત મહેમાનો તથા દૂર દૂરથી પધારે દરેક સમાજની શ્રેષ્ઠી બહેનોને, બ્રહ્માકુમારી સર્વ દીદી સર્વને હું આજે ભાવભીનું સ્વાગત કરું છું. પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિદ્યાલય મહેસાણા સાથે સંયુક્ત ઉપક્રમે મહિલાઓ માટેનો આયોજિત સેમિનાર સકારાત્મક પરિવર્તન દ્વારા આનંદમય જીવન કેમ જીવવું, આવા મંગલમય શુભ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનો હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિદ્યાલય એક અદ્વિતીય આધ્યાત્મિક સંસ્થા છે જે મનુષ્યના જીવનને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અને સહજ રાજયોગના માધ્યમથી હીરા સમાન મૂલ્યવાન બનાવવાનું કાર્ય કરે છે. ઉત્તર ગુજરાતની ધરતી જ્યાં ધર્મ, આધ્યાત્મ અને સ્થાપત્ય કલાનો સંગમ છે, આવી પાવન ધરતીના ઇતિહાસની ડાયરીમાં 1973માં જ્યારે પરમાત્મા દ્વારા આપેલ ઈશ્વરીય જ્ઞાનનું બીજ મહેસાણામાં રોપાયું, ત્યાગી અને બ્રહ્માકુમારી બહેનોએ એવા કે સર્વા દીદી અથાગ પ્રયત્ન કર્યો છે. આજે આપણી વચ્ચે નથી, પણ છેલ્લા 50 વર્ષમાં ગુજરાતમાં મનુષ્યના જીવનમાં જ્ઞાનનો દિવ્ય સંચાર કર્યો અને 2023ના 50 વર્ષના સુવર્ણ જયંતિ વર્ષના શુભ આરંભ ભવ્ય અને વિશાળ આધ્યાત્મિકતા દ્વારા શિવ અગ્રહણનો મેળા દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું. તેનો લાભ લાખો લોકોએ લીધો છે. સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવનું સમાપન શ્રીમદ ભાગવત ગીતાનું વ્યવહારિક સ્વરૂપ દ્વારા 5 દિવસનું વ્યાખ્યાન માળાનું આયોજન કરી રહ્યા છે. આ કાર્યક્રમને વ્યાખ્યાન આપવા આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરનાર શ્રીમદ ભાગવત ગીતાના જ્ઞાન રહસ્ય પ્રવચન કરતા
દેશ વિદેશમાં જ્ઞાનની ઉષા ફેલાવવાવાળા આદરણીય રાજયોગીની બ્રહ્મા કુમારી ઉષા દીદી, ઓમ શાંતિ. खूब खूब धन्यवाद. ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. આજના કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્યથી કરીશું. મંચ પર બિરાજમાન સર્વે મહેમાનગણને હું વિનંતી કરીશ કે આપ દીપ પ્રાગટ્ય કરીને આજના કાર્યક્રમને વહેતો મૂકે. મોબાઈલને ટોર્ચ કરીને આપ પણ આમાં સહભાગી બનશો. ओम शांति. परिवर्तन की है ये बेला, ओम शांति. बदलने वाला આપણે તાલીઓના ગગડાટથી का मार्ग यही આજના કાર્યક્રમને વધાવી લઈશું. सहज ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ निराला મહેમાનગણનો. दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा. આવો મહામૂલા મહેમાનોનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરીશું. આપના શું કરીએ ફુલહારથી સન્માન કે સ્વાગત. આપના શું કરીએ ફુલહારથી સન્માન કે સ્વાગત. આપ તો ખુદ ખુશ્બુ ભર્યા ગુલજાર લાગો છો. આપ તો ખુદ ખુશ્બુ ભર્યા ગુલજાર લાગો છો. આજે હું મારી જાતને ખૂબ જ ભાગ્યશાળી માનું છું કે મને આજે આદરણીય ઉષા દીદીજીનો પરિચય આપવાનો મોકો મળ્યો. આપ દક્ષિણ આફ્રિકાના જામિયામાં દેસાઈ પરિવારમાં આપનો જન્મ થયો. 1976માં આપે આપનું જીવન માનવતાના કલ્યાણ અર્થ ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલયમાં સમર્પિત કર્યું. 1992થી લઈને અત્યાર સુધી મોટી સંસ્થાન જેવી કે ગોદરેજ, હિન્દુસ્તાન એરોનોટિકલ લિમિટેડ, ટાટા, અમૂલ, ઇફકો, ઓએનજીસી, બીએસએનએલ જેવી અનેક સંસ્થામાં આપે સેલ્ફ મેનેજિંગ લીડરશિપ, તણાવ મુક્ત આદિ શિબિર કરાવી અનેકોના જીવનના રાહ ચીંધ્યા છે. વર્તમાનમાં આપ માઉન્ટ આબુના શાંતિવન પરિસરના સર્વ કાર્યક્રમના પ્રમુખ વક્તા છો. આપે જર્મની, બ્રિટન, આયર્લેન્ડ, યુએસએ જેવા અનેક દેશોમાં આધ્યાત્મિકતાની ઉષા વિખેરી છે. आप 2 पुस्तक सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप અને આધ્યાત્મિકતા કી ઓરના લેખક છો. આપે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને રામાયણ જેવા મહાન ગ્રંથો પર દેશ વિદેશમાં આધ્યાત્મિકતાનો પ્રકાશ ફેલાવ્યો છે. ઇન ફેક્ટ she is a practical example of applied spirituality. આપ ટીવી ચેનલ, યુટ્યુબ ચેનલ પર આપતા અનેક કાર્યક્રમોના આપ લોકપ્રિય વક્તા છો. આપની ઓજસ્વી વાણી માટે આપને અનેક સન્માનોથી નવાજવામાં આવ્યા છે, જેમાં મુખ્ય છે હોલ ફેમ એવોર્ડ્સ, પબ્લિક રિલેશનશિપ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા તરફથી 2012માં આપને પ્રાપ્ત થયેલો છે. સપ્ટેમ્બર 2019માં અમેરિકન લોસ એન્જલ્સમાં આધ્યાત્મિક કલ્યાણના રાજદૂત તરીકે સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. 2019માં થાઈલેન્ડ ગવર્મેન્ટ દ્વારા નૈતિક પુરસ્કાર અને શાંતિ પદકથી આપને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. ફિલિપાઇન્સની રાજકુમારી દ્વારા પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર ગ્લોબલ ઓર્ડર ઓફ ડિગ્નિટરીઝથી આપને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. તાજેતરમાં આપને વિક્રમશિલા હિન્દ વિદ્યાપીઠ ભાગલપુર, બિહાર દ્વારા ડોક્ટરેટની ઉપાધિથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. પરમાત્મ શક્તિઓથી સુસજ્જિત પરમ આદરણીય ઉષા દીદીજી, આપને લાખો મનુષ્ય આત્માઓની અજ્ઞાનતા અને દુઃખોને સમાપ્ત કરી સુખ અને પરમાત્મ જ્ઞાનની ઉષા વિખેરી રહ્યા છો. તો આવો આવા મહાન વિભૂતિનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરવા માટે હું વિશ્વ ઉમિયાધામ ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેરપર્સન માનનીય શારદાબેન
અને મહામંત્રી દક્ષાબેનને વિનંતી કરીશ કે શાલ ઓઢાડી અને પુષ્પગુચ્છથી એમનું સ્વાગત કરે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ શારદાબેનનો ને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનનીય દક્ષાબેનનો. દીદીજીનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે તો આપ સર્વે ખૂબ તાલીઓના ગડગડાટથી बहुत बहुत धन्यवाद मालतीबेन. बहुत बहुत धन्यवाद ઉષા દીદી, આપનો પણ बहुत बहुत ધન્યવાદ. આપે આપનું જીવન ઈશ્વરીય સેવામાં સમર્પિત કરી પરમાત્મા જ્ઞાન અને યોગ દ્વારા અનેકોના જીવનમાં આત્મરૂપી દીપ જગાવી રહ્યા છો. આપ પ્રેમ અને કરુણાની મૂર્ત છો. આપનું જીવન અનેકો માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત છે એવા પરમ આદરણીય કુસુમ દીદીજીનું બુકેથી સ્વાગત કરશે માનનીય પ્રવીણાબેન જે પટેલ. આદરણીય ઉષા દીદી સાથે પધારેલ માઉન્ટ આબુથી પધારેલ વર્ષા દીદીનું સ્વાગત. આપે આપનું જીવન ઈશ્વરીય સેવા અર્થ સન્માનિત કરી પરમાત્મા જ્ઞાનની વર્ષા વરસાવી છે અને માનવ કલ્યાણ કરી રહ્યા છો એવા પરમ આદરણીય વર્ષા દીદીજીનું સ્વાગત કરવા માટે હું ભાવનાબેન જે પટેલને વિનંતી કરીશ. ભૌતિક ભર્યા આજના જીવનમાં આપણે કદાચ ભૌતિક સુખોને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, પરંતુ માનસિક, આર્થિક કે શારીરિક દુઃખ જેવી વિકટ પરિસ્થિતિને સહન કરી શકતા નથી. તો આવો સકારાત્મક પરિવર્તન દ્વારા આનંદમય જીવન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય એ વિષય પર રસપાન કરવા માટે આપણી વચ્ચે બિરાજમાન પરમ આદરણીય ઉષા દીદીજીને હું વિનંતી કરીશ. ઓમ શાંતિ. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. विश्व कल्याणकारी निराकार परमपिता परमात्मा शिव के सभी प्रिय संतान, विशेष हमारी मातृशक्ति आज सन्मुख बैठे हैं, अपना समय निकाल करके यहाँ पहुँचे हैं. आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है. मातृशक्ति जहाँ एकत्रित हो जाए, एक अलग ही ऊर्जा वहाँ अनुभव होती है, क्योंकि हर एक माता के अंदर दिव्य शक्ति का वास होता है. भगवान के लिए भी कहा जाता कि ये मातृ शक्ति के बिना वो भी परिपूर्ण नहीं है. तो इसीलिए सारा संसार अनेक देवियों की पूजा करता है, आराधना करता है, क्योंकि वो हर तरीके से वंदनीय है. आज बहुत सुंदर विषय दिया गया है कि सकारात्मक परिवर्तन. परिवर्तन शाश्वत है. हर घड़ी परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा. कोई क्षण ऐसी नहीं है जब परिवर्तन नहीं हो रहा है. लेकिन चारों ओर अगर दुनिया के अंदर देखें तो परिवर्तन किस दिशा में जा रहा है, ये भी हम सभी जानते हैं कि दुनिया के अंदर आधुनिकता के नाम पर जो परिवर्तन हो रहा है वो कहीं न कहीं नकारात्मक दिशा की ओर ही ले जा रहा है.
और इसलिए उस परिवर्तन को देख करके मनुष्य कभी कभी मूंझ भी जाता है, परेशान भी हो जाता है। और कई लोग परिवर्तन के नाम से ही भयभीत हो जाते हैं। अब बदलना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा। तो परिवर्तन से भयभीत न हो, क्योंकि ये 2023वां साल जा रहा है, 2024वां साल का आगमन हो रहा है। तो इसीलिए परिवर्तन जब साल का हो रहा है तो हम सबको भी कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की जरूरत है। तो कहाँ परिवर्तन लाना है? आज मैं कुछ बातें आपको दूंगी कि परिवर्तन कहाँ ले आना है। ये तो जरूर है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, अनेक समस्याएं आती है, अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और ये भी हम जानते हैं, मानते हैं कि अब जो समस्याएं आएगी, चुनौतियां आएगी, वो और कठिन होंगी और कॉम्प्लिकेटेड होगी और दिवस पर देखा जाए तो समय भी नाजुक होता जा रहा है। तो नाजुक समय और समस्याएं विकट, चुनौतियां एकदम विपरीत, तो ऐसे समय में मनुष्य कभी कभी मूंझता है, भयभीत होता है और पता नहीं कैसा समय आएगा, क्या होगा। हम अच्छा परिवर्तन तो करना चाहते हैं, लेकिन आ जाता है ना? तो दुनिया के अंदर जो समस्याएं बढ़ रही है, उसका समाधान कहाँ है? एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक महात्मा जी थे, तो वो अपने पास एक आईना रखते थे और बीच बीच में वो आईना निकालते थे, देखते थे, फिर रख देते थे, थोड़ी देर के बाद फिर निकालते थे, देखते थे। तो लोगों ने पूछा कि महात्मा जी, ये आप बार बार आईना क्यों निकालते हैं और क्या देखते हैं? और वो भी एक बार नहीं, दो बार निकालते हैं, तो क्या देखते? तो महात्मा जी ने कहा कि जब मेरे पास कोई समस्या आती है, जहां व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई कमजोरी का प्रयोग करता है, जैसे मान लो कि किसी की कोई हरकत देख करके आपके मुख से गाली निकल गई उसके लिए, अब वो व्यक्ति सोचता है आने दो, समय आने दो, मैं भी देख लेता हूं। तो समस्या कैसे क्रिएट हुई? समस्या कैसे क्रिएट हुई? जब फिर वो व्यक्ति ऐसी बात कह देगा, चलते चलते आपका अपमान कर देगा, कुछ भी कहेगा, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कमजोरी वश, मेरी कमजोरी कहाँ थी? गुस्सा। और उस गुस्से को कंट्रोल न कर पाने के कारण मैंने जो कुछ भी कहा था उसकी प्रतिक्रिया किसी न किसी रूप में तो आएगी। तो जब भी इंसान अपने जीवन के अंदर कोई न कोई कमजोरी का प्रयोग करता है,
वहां से वो समस्या का बीज डाल देता है, और वो आज नहीं तो कल समस्या के रूप में हमारे सामने आएगी ही, और उसका सामना मुझे करना पड़ता है। उस समय फिर मैं ये कहूं ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि मैंने कमजोरी वश कुछ ऐसे शब्द कह दिए थे जिस कारण ये समस्या क्रिएट हुई है। तो अब उसका समाधान भी तो मुझे ही करना होगा। या तो जैसे ही एहसास हुआ तो समस्या क्रिएट होने से पहले ही हम क्षमा मांग लें। रियलाइज करते हुए हम अगर उस व्यक्ति से कह दे कि भाई सॉरी, मेरे मुख से ये शब्द निकल गया, अयोग्य शब्द निकल गया, क्षमा कर देना, है ना, क्षमा मांग लो, तो शायद वो समस्या क्रिएट होने से रुक जाए। लेकिन सॉरी नहीं होता, क्यों? वहां हमारा अपना अहम आ जाता है। अब कौन सॉरी करेगा? अब सॉरी करेंगे नहीं तो क्या होगा? उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। तो आज सकारात्मक परिवर्तन के लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगी कि कहां कहां परिवर्तन करने की जरूरत है। सबसे पहला परिवर्तन जो हमें करना है वो अपनी विचारधारा में करना है। विचारों में परिवर्तन ले आना है, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। चिंतन बीज है, विचार बीज है। जो क्वालिटी का विचार होगा वैसे मेरे जीवन की क्वालिटी बन जाए। इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि अपने ख्यालातों को बहुत खूबसूरत बनाओ। जितना हमारे विचार खूबसूरत होंगे, जीवन के अंदर बहुत सुंदर आप हर क्षण अनुभव करते रहेंगे। कहा जाता है कि एक विचार ही मनुष्य की किस्मत बदल देता है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक कुम्हार था, वो कुछ मिट्टी लेके आया और मिट्टी रौंदने लगा। उसने सोचा चिलम बनाता हूं, तो चिलम बनाने के लिए मिट्टी रौंदने लगा। अब थोड़ी देर में उसकी पत्नी घर में से बाहर आई, देखा कि कुम्हार जो है वो मिट्टी रौंद रहा है, तो उसको पूछा क्या बना रहे हैं? तो कुम्हार ने कहा चिलम बना रहा हूं। तो पत्नी ने कहा रे चिलम क्यों बना रहे? तो कहा क्यों? कहा रे गर्मी के दिन आ रहे हैं, सुराही बनाओ, लोगों को शीतल जल तो मिलेगा। इतना बोल करके वो अंदर चली गई। कुम्हार सोचने लगा कि बात तो ये ठीक कर रही है, गर्मी का दिन आ रहा है, सुराही बना देता। तो उसने विचार बदल दिया, सुराही बनाने के लिए फिर मिट्टी रौंदने लगा। मिट्टी से आवाज आई, कुम्हार क्या बना रहा है? तो कहा सुराही बना रहा। तो मिट्टी ने कहा अरे कुम्हार, तू तो चिलम बना रहा था। तो कहा सोचा तो था, लेकिन अब विचार बदल गया। तो मिट्टी कहती है तेरा तो विचार बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई। चिलम बनाता था, खुद भी जलता था, दूसरों को भी जलाता था।
अब जब सुराही बना रहा है तो खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। एक विचार किस्मत बदलता है। देखो अपने आप को, मेरे विचारों की क्वालिटी क्या है, सकारात्मक है या नकारात्मक है? क्योंकि जितने हमारे विचारों में सकारात्मकता होगी उतना जीवन बहुत सुंदर बनेगा। जितने हमारे विचारों में नकारात्मकता होगी उतने जीवन की क्वालिटी में क्या अनुभव करेंगे? नेगेटिव सोचने के बाद क्या खुशी का अनुभव होगा? नेगेटिव सोचने के बाद कभी जीवन में उमंग उत्साह का अनुभव होगा? कभी नहीं। इसीलिए मुझे ये देखना है कि मेरे विचारों की क्वालिटी क्या है, और अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव है तो उसको परिवर्तन कर लेना आवश्यक है। जितना जल्दी उसको परिवर्तन करेंगे उतना अच्छा है। आज के युग के अंदर ये जागृति तो जरूर है कि बी पॉजिटिव। आजकल छोटे बच्चे भी माँ बाप को सलाह देने लगते हैं, अरे क्यों नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचो। कहते हैं ना आपके बच्चे आपको। लेकिन दूसरों को सलाह देना आसान है कि कोई नेगेटिव सोच रहा हो तो हम उसको कह सकते हैं, क्यों नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन जब हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है और हम नेगेटिव सोचने लगते हैं और वो व्यक्ति हमें याद दिलाता है कि हमें तो बड़ी अच्छी सलाह दे रहे थे, अब तुम्हारा क्या हुआ, तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेरी बात अलग है, तेरी बात अलग है। तेरे केस में तो आज भी हम कहेंगे तू नेगेटिव सोच रहा था, मेरा तो केस ही अलग है ना। मैं तो वास्तविक सोचने का प्रयत्न कर रहा है, नेगेटिव। और क्या कहते हैं? वास्तविक सोचने का, प्रैक्टिकल सोचने का प्रयत्न कर रहा। क्योंकि सच पूछा जाए तो पॉजिटिव सोचने के लिए इतना मसाला चाहिए। आज अगर किसी को भी कहा जाए ना कि 5 मिनट पॉजिटिव सोचो, अच्छे विचार करो, 2 मिनट सोचेंगे, 2 मिनट के बाद एक दूसरे का चेहरा देखने लगेंगे, क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, मसाला ही पूरा हो गया। और किसी को अगर कहा जाए जितना मर्जी है नेगेटिव सोचो, तो घंटों सोच सकते, इतना मसाला है हमारे पास नेगेटिव सोचने का, है ना? अच्छा, खुशी किस में मिलेगी, नेगेटिव सोचने में या पॉजिटिव सोचने में? और पॉजिटिव सोचने का मसाला है ही नहीं हमारे पास, तो जीवन की क्वालिटी क्या हो रही है? इसलिए आवश्यकता है कि ये मसाला कहाँ मिलेगा, पॉजिटिव सोचने का मसाला कहाँ मिलेगा? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता एकमात्र स्रोत है जहां से हमें पॉजिटिव सोचने का मसाला मिलेगा। आपने देखा होगा, लोग जब एक दूसरे को व्हाट्सएप पर सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं तो कोई ना कोई आध्यात्मिक विचार होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सोचते हैं ये जो है ना फलाने को बहुत काम की चीज है, उसको फॉरवर्ड करो, मुझे जरूरत है, मुझे आवश्यकता है, ये नहीं सोचते हैं। लेकिन फलाने को जरूरत है, उसको फॉरवर्ड करते हैं, वो दूसरे को फॉरवर्ड करता है, वो तीसरे को, और घूम घूम के कभी वापस खुद के पास ही आ जाता है? भावार्थ ये
कि हमारा हमेशा ध्यान दूसरों की ओर ही होता है और इसीलिए पॉजिटिव सोचना बहुत कठिन है। तो आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्यों है वर्तमान समय में? क्योंकि वही एकमात्र स्रोत है जहां से अच्छे विचार, सकारात्मक चिंतन प्राप्त होगा जो हमारी जीवन की क्वालिटी को बदलेगा। भारत इस बात के लिए खुशकिस्मत है क्योंकि भारत के अंदर ही आध्यात्मिकता समाई है। बाकी कोई देशों में आध्यात्मिकता नहीं है। इसलिए आज वहाँ की हालत अगर देखा जाए ना, तो हर घर में एक डिप्रेशन का पेशेंट मिलेगा। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारी धरोहर में आध्यात्मिकता है। और इसीलिए अगर डिप्रेशन का शिकार नहीं बनना है, क्योंकि नेगेटिव सोच करके क्या होगा, फाइनली व्यक्ति डिप्रेशन में ही जाता है। जितना नेगेटिव सोचता है, ना उम्मीद, दिल शिकस्त होने लगता है, निराशा, उदासी, हताशा जीवन में आने लगती है और वही तो फाउंडेशन है डिप्रेशन का। तो इसलिए अगर हमें अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखना है, मानसिक रूप से सशक्त करना है, तो अभी से वो आध्यात्मिकता का संस्कार रोपण करने की आवश्यकता है, उसका बीजारोपण करने की जरूरत है। दूसरा परिवर्तन कहाँ ले आना है? तो अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है, परसेप्शन में। क्योंकि कहा जाता है जैसा देखोगे वैसा ही सब कुछ दिखाई देने लगेगा। जैसा दृष्टिकोण होगा वैसे ही हर चीज नजर आने लगेगी। एक बार एक राजा था, तो वो एक महात्मा के पास जाता है और महात्मा से कहता है कि मुझे ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है। तो महात्मा ने उसको कहा, हरा देखने का अभ्यास करो, हरियाली को देखो। जितना आप हरा रंग देखेंगे ना, आपकी रोशनी, आंखों की जो तेज है, आंखें ठीक होने लगेगी। वैसे भी कई लोग कहते हैं तो सुबह सुबह आप हरियाली को देखो तो हमारी जो आंखों की रोशनी है वो अच्छी हो जाएगी। तो महात्मा ने भी उसको कहा कि भाई सुबह सुबह उठ करके तुम जितना ज़्यादा हरियाली को देखेगा, हरा रंग देखेगा चारों ओर, उतना ही तुम्हारे लिए, तुम्हारी रोशनी के लिए अच्छा हो जाएगा। अब राजा समझा नहीं, उसने कहा दीवारों को हरा कर दो, हर चीज हरा कर दो महल के अंदर। सबको लगा ये क्या हो गया राजा को। उसने अपने कपड़े हरे हरे सिलवा दिए, भाई हरा देखना। महात्मा ने कहा हरा ही देखना, तो इसलिए सब कुछ महल में हरा ही हरा पेंट करवा दिया। लेकिन महल से बाहर निकला तो लोगों को देखा वो तो रंग बिरंगी थे। तो उसने ऐलान कर दिया कि भाई सारी जनता जो है वो भी अपने कपड़े हरे कर दे, सब हरा कर दो, सबकी दीवारें हरा कर दो। अब लोग परेशान हो गए, राजा को क्या हो गया। अब राजा को कहने की हिम्मत तो किसी की होती नहीं है। आखिर वो जिस गुरु को मानते थे, महात्मा जी को मानते थे, उनके पास गए और कहने लगे, महात्मा जी ये क्या आपने पाठ पढ़ा दिया राजा को, सब कुछ हरा ही हरा करवा रहे हैं, हर एक के बिल्डिंग हरे, हर एक के कपड़े हरे, सब कुछ हरा ही हरा करना है, आपने क्या इसे सिखाया। जब उसको वास्तविकता मालूम पड़ी, कहा आप चिंता नहीं करो, मैं ठीक करता हूँ। महल में गए तो देखा महल के हर कोने में हरा ही हरा किया हुआ है। तो राजा से जब मिले तो राजा बड़े खुशी से कहने लगे, महात्मा जी देखो मैंने सब कुछ हरा ही हरा कर दिया है ना, आपने कहा था ना कि सुबह सुबह हरा देखना चाहिए, तो इसीलिए सब कुछ हरा ही हरा कर दिया।
तो महात्मा जी ने कहा कि मैंने हरा करने के लिए नहीं कहा था, हरा देखने के लिए कहा था। इतना सब खर्चा करने के बजाय तू हरा रंग का चश्मा ही पहन लेता था, तुमको सब कुछ हरा ही हरा नजर आता था, है ना? तो भगवान भी हमें क्या कहते हैं, अच्छा ही देखो। हर एक के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? सब अनुभवी है ना। तो आज के बाद कौन सा चश्मा पहनेंगे? अच्छाई देखने का चश्मा पहनो तो आपका जीवन प्रसन्न रहने लगेगा। एक बार एक भगत था, खूब भगवान को याद करता था। तो एक दिन भगवान उसके सामने प्रसन्न हो गए और कहा, मांगो जो मांगोगे मिलेगा। तो वो व्यक्ति ने कहा, भगवान मैं जीवन में सदा सुखी होना चाहता हूँ, सदा सुखी होना चाहता हूँ। कुछ ऐसा मंत्र दे दो, कुछ ऐसी विधि बता दो जो मैं सदा सुखी हूँ, कभी दुखी हो ही नहीं। तो भगवान ने कहा, बस इतनी सी बात? कहा तो एक कावड़ दिया। कावड़ आता है? कावड़ दिया। एक तरफ गोल्डन कपड़ा रखा हुआ था, एक तरफ काला कपड़ा रखा हुआ था। वो कावड़ देते हुए भगवान ने कहा, ये गोल्डन कपड़ा जो है वो आगे रखना और एक काला कपड़ा पीछे रखना, तो सदा सुखी हो जाएगा। तो मनुष्य मूंझ गया कि भगवान इसमें ऐसा क्या है जो मैं सदा सुखी हो जाऊंगा? तो कहा, देखो जीवन की यात्रा में तुम जब चलोगे तो तुम्हें बहुत सारे इंसान मिलेंगे। हर एक इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। जब तुम्हें किसी की कुछ लगा तो नहीं माता जी को? ओके, ओम शांति। तो वो व्यक्ति को कहा भगवान ने कि जब तुम जीवन की यात्रा में चलोगे तो तुम्हें जो भी इंसान मिलेगा उसमें अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी। जब तुम्हें किसी की अच्छाई दिखाई दे तो ये गोल्डन कपड़े में डाल देना आगे, और उसको आगे रखना और उसी के आधार पर व्यवहार करना। और जब भी तुम्हें किसी की बुराई दिखाई दे तो उसको पीछे काले कपड़े में डाल देना। उसके अपने चित्त पर नहीं रखना, पीछे डाल देना। व्यवहार उस सद्गुण के आधार से ही करना, तो तुम सदा सुखी हो जाओगे। तो वो व्यक्ति को लगा क्या बात तो ठीक है, कावड़ ले लिया, चलने लगा। जब भी किसी की अच्छाई दिखाई दे सामने रख देता, उसी के आधार पर व्यवहार करने लगता। और कभी किसी की बुराई दिखाई भी देती थी, उसको पीछे डाल देता था। सचमुच बहुत सुखी हो गया, बहुत सुखी हो गया, सबकी अच्छाई दिखाई देने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो सोया हुआ था, और जब सोया हुआ था अचानक जोर का भूकंप आया। रात्रि में सब उठ के भागे, तो वो भी उठ के भागा, अपना कावड़ उठाया, भागा लेकर के। और गलती ये हो गई, काला कपड़ा के गोल्डन कपड़ा पीछे, और उसका ध्यान नहीं गया। जब भी किसी की बुराई दिखाई दे सामने रख देता, उसी के आधार पर व्यवहार करना शुरू कर दिया, फिर जीवन में दुखी हो गया। आज क्या करना होगा? आज ये कावड़ को बदली करना है। काला कपड़ा पीछे और गोल्डन कपड़ा आगे। तैयार है? सभी तैयार है?
नए साल के लिए हम अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प करें कि आज के बाद हम हर एक की अच्छाई ही देखने का प्रयत्न करेंगे। देखना आप सदा सुखी हो जाएंगे। भगवान के मंदिर में जाकर क्या कहते हैं? हे प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, कहते हैं ना। आज भगवान हमें कह रहा है तू भी किसी के अवगुण चित्त न धर, तो मैं तेरा अवगुण चित्त नहीं धरूंगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। तो आज के बाद ये सूक्ष्म में जो कावड़ है ना, उसको बदली कर देना है। गोल्डन कपड़ा आगे और काला कपड़ा पीछे। हाँ, जो कहते हैं नए साल में हम ये करेंगे, जरा हाथ तो खड़ा करो। वाह रे वाह, अरे वाह। हर एक की अच्छाई देखो, दिन सुधर जाएगा। जब दृष्टिकोण बदल गया तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमारी कर्मों की सृष्टि भी बदलने लगेगी। ठीक है? अच्छा, तीसरा परिवर्तन कहाँ करना है? पहला विचारों में, दूसरा दृष्टिकोण में। तीसरा परिवर्तन कहाँ करना है? भाव और भावना। आज से लेकर के हर एक के प्रति शुभ भावना प्रवाहित करना है, शुभ भावना देना है। क्योंकि कहा जाता है जो देंगे वो वापस आएगा। आप किसी के लिए शुभ भावना प्रवाहित करेगी तो आपके पास वही आएगा। आप किसी को दुआ देंगे, आपके पास वही आएगा। जो देंगे वही मिलेगा। तो अपने भाव और भावना के अंदर सदा शुभ भाव, हर एक के प्रति आत्मिक भाव को विकसित करूं कि ये तो शरीर एक चोला है, लेकिन उसके अंदर बैठी हुई आत्मा बहुत सुंदर है। ये भी ईश्वर का बच्चा है। तो धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आप जागरूक करेंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए भाव और भावना में परिवर्तन ले आए। दृष्टि बदल गई, विचार बदल गए, तो भाव भावना बदलनी ही है। तो भावना जैसे बदलने लगेगी, वृहद होती जाएंगी। सबके प्रति शुभ भावना अगर आप प्रकट करना चालू करेंगे, खाली नए साल के दिन हैप्पी न्यू ईयर नहीं करना है, लेकिन सारा साल हैप्पी न्यू ईयर करना है। हर दिन को ये समझो कि आज का दिन हर एक का शुभ जाए, बहुत अच्छा बीते, है ना? किसी के जीवन के अंदर कोई दुख की बात ना आए, ऐसी भावना को निरंतर प्रवाहित होने दें। ये सकारात्मक परिवर्तन स्वयं में ले आना है। ठीक है? चौथा परिवर्तन कहाँ लाना है? वाणी में परिवर्तन। नए साल के लिए ये जरूर हम दृढ़ संकल्प करें कि वाणी में परिवर्तन ले आए। एक बार एक व्यक्ति ने किसी को कहा कि इंसान के शरीर में सबसे अच्छा अंग जो है ना, उसको काट के ले आओ। सबसे अच्छा अंग काट के ले आओ। तो एक मृत शरीर पड़ा था, तो कहा इसमें से सबसे अच्छा अंग कौन सा है, ले आओ। तो उसने जीवा काट करके ले आया। तो कहा क्यों जीवा काट के ले आए? तो कहा सबसे अच्छा अंग यही है क्योंकि ये जब मृदु हो जाती है ना, ये जब मीठा बोलने लगती है, ये जब अच्छा बोलने लगती है, तो किसी का जीवन बना देती है। ये अगर किसी का उमंग उत्साह बढ़ा देती है तो बहुत आगे उसको निरुत्साहित जीवन वाले को भी, डिप्रेशन वाले को भी, उसके अंदर भी आशा की किरण जागृत करती है। इसलिए मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे अच्छा अंग अगर है ना, तो ये जीवा है। ठीक है?
अब इस शरीर के अंदर जो सबसे बुरा अंग है ना, वो काट के ले आओ। तो फिर से वो जीवाई ले आए। कहा क्यों? कहा ये अगर कटु बोलने लगे ना तो क्या करेगा? हाँ? किसी को घायल कर देगा। और वो तीर ऐसा लगता है जो कभी इंसान भूल नहीं पाता है। तो सबसे अच्छा अंग भी यही है और सबसे बुरा अंग भी यही है। हमें अपने इस अंग को कैसा बनाना है? कैसा बनाना है? हाँ? मृदु बनाना है, बहुत मीठा बनाना है, मधुर करना है। और देखो सारे वातावरण के अंदर आप कैसी मधुरता की खुशबू को फैलाते हैं, अपने घर परिवार को कितना सुंदर बना देते हो। अनुभव करके तो देखो। तो 2024 में क्या बोलना है? 2024 में यही हम संकल्प करें कि कोई बुरा भी बोले ना, उसके साथ भी अच्छा बोलता है, उसके प्रति भी भावना अच्छी रखनी है। तो देखो कितना सुंदर आपका घर संसार हो जाएगा। आपका परिवार के अंदर कितनी खुशी, सुख, शांति, आनंद सब फैलने लगेगा। ठीक है ना? तो ये परिवर्तन, चौथा परिवर्तन। और पांचवा परिवर्तन कर्म। कर्म में परिवर्तन। अगर ये 4 परिवर्तन हुआ ना तो कर्म तो परिवर्तन होना ही है। उसको अच्छा कर्म करने का एक दृढ़ संकल्प करो कि आज मुझे अच्छा कर्म करना है, किसी न किसी को सुख देने का काम करना है। सुख देना माना ये नहीं कि गलत कार्य के लिए भी सुख देना है, उसको अच्छा लगता है इसलिए वो करो, ये नहीं। लेकिन आप इतना सुंदर कर्म करो जो आपके कर्मों को देख करके दूसरों को भी प्रेरणा मिले कि कितना सुंदर कर्म है, यादगार बन जाए आपके कर्म। ऐसा कर्म करना है। मनुष्य के कर्म ही उसको गिराता भी है, मनुष्य के कर्म ही उसको अमर भी कर देता है। और इंसान के साथ अगर जाता है तो भी उसके कर्म जाता है और कुछ नहीं जाता है। वो वाल्मीकि जी की कहानी तो सबको मालूम है कि वाल्मीकि जी लुटेरा था। जब एक सन्यासी को उसने पकड़ा लूटने के लिए तो उसने पूछा कि तुम ये क्यों कर्म कर रहा है? कहा मेरे परिवार को पालना है इसीलिए। तो कहा तो फिर ये तो जरूर होगा कि तेरा जब ये कर्म का फल भोगने का समय आएगा तभी भी तेरा परिवार साथ ही होगा फल भोगने के लिए भी। तो कहा ये तो मेरे को मालूम नहीं। कहा पूछ के तो आओ जरा परिवार वाले को कि भाई जो कर्म मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो जब इसका फल भोगने का समय आएगा तभी भी आप साथ रहेंगे ना भोगने के लिए? क्यों नहीं रहेंगे? जरूर रहेंगे। कब पूछ के तो आप गया पूछने के लिए। तो माता पिता को पूछा कि हे माँ पिता, मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ आपके लिए, परिवार को पालने के लिए, जब इस कर्म का फल भोगने का समय आएगा तब आप लोग मेरे साथ होंगे ना? आप लोग भी बांटेंगे ना इस कर्म का भोगने का समय? तो कहा रे बेटा, हम तो अभी जल्दी ही शरीर छोड़ देंगे, चले जाएंगे। अब हम कहाँ जाते हैं, वहां तुम कहाँ मिलेगा हमको, तो हमें क्या मालूम तुम कहाँ जाएगा, हम कहाँ चले गए। तो तेरे कर्म का फल हम कैसे भोग सकेंगे? वो तो तेरे को ही भोगना पड़ेगा। तो माता पिता ने तो मना कर दिया कि हम तो कहाँ होंगे, मालूम ही नहीं। साथ भी होंगे नहीं होंगे वो भी मालूम नहीं। फिर वो पत्नी के पास जाता है और कहते हैं मैं जो ये कर्म कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो ये कर्म करने का, ये कर्म का फल जब भोगने का समय आएगा तब आप हमारे साथ रहेंगे ना?
तो पत्नी ने कहा, अरे हम कैसे रहेंगे, आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, हाँ हमें मालूम भी नहीं होगा, ये शरीर छोड़ने के बाद तो पहचानेंगे भी नहीं, और आप कहाँ चले जाएंगे, हम कहाँ होंगे, आपके कर्म का फल हम कैसे भोग सकेंगे। तो पत्नी का भी जवाब मिल गया। फिर बच्चों के पास गए कि बच्चे आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं, तो उस समय तो कर्म का फल भोगने के लिए आप साथ रहोगे ना। तो कहा, अरे पिताजी आप तो जल्दी जाएंगे, हम इतना जल्दी थोड़ी जाने वाले हैं, इसलिए आपका कर्म का फल हम कैसे भोग सकेंगे, वो तो आपको ही भोगना पड़ेगा। तो हरेक ने जब मना कर दिया तब वाल्मीकि जी की आंखें खुल गई और उस दिन से जीवन में परिवर्तन आ गया। वाल्मीकि जी की आंखें तो खुल गई, हमारी आंखें खुली, हमारी आंखें खुली। हम भी जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे, पोतरे के बच्चे क्या खाएंगे उसके लिए, लेकिन क्या उसके नसीब में भी है। आप जिसके लिए कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, अरे आप खुद सुख भोगो ना उसका, खुद अच्छा कर्म करो उससे जो आपके साथ जाने वाला है। दूसरे का सोचकर जो पैदा भी नहीं हुआ उसके लिए सोच करके इकट्ठा करना, ये कहाँ की समझदारी है बताओ। और उसके नसीब में अगर आपकी कमाई होगी ही नहीं, उड़ा देगा या दूसरा कोई खा लेगा, उसको तो मिलेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, वर्तमान में जा रहा है, भविष्य भी कुछ जमा नहीं किया, तो क्या करेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो जो साथ चलने वाला है। लास्ट में एक कहानी सुनाना चाहूंगी कि एक बार एक सेठ जी थे और उसको 3 बेटे थे। 2 बेटों की शादी हो गई थी, तीसरे की होने वाली थी। घर में बहू आने वाली थी, शादी जैसे ही हो गई घर में तीसरी बहू आई तो 2 बड़ी बहुओं ने घर का ससुर जी का नियम बता दिया तीसरी बहू को कि देखो ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना, दान नहीं करना। अब उसके पियर घर में उसको संस्कार यही बाप ने दिए थे, बेटे जो भी जरूरतमंद हो उसको दान करके उसको मदद करना, ये करना। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, ये कैसा नियम है कि भाई ससुर जी का नियम है, हमें दान करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। अब नियम है तो फॉलो तो करना पड़ेगा, जिस परिवार में रहना है उस परिवार के नियम कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। चलने लगी, कुछ नहीं दान करती थी तीसरी बहू भी। तो एक दिन जो है 6-8 महीना बीत गए और 6-8 महीना बीतने के बाद बड़ा बंगला था तो ऊपर उसका कमरा था, कपड़े सुखा रही थी गैलरी में, एक गेट पर एक फकीर आया। वो फकीर ने आवाज लगाई, 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। तो ऊपर जो छोटी बहू कपड़ा सुखा रही थी उसने जवाब दिया उसको, बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। ये सुन करके वो फकीर चला गया। अब नीचे ससुर जी पेपर पढ़ रहे थे, उसने सुना बासी खाना खा रहे और कल उपवास करेंगे। बड़ा गुस्सा आया, किस दिन हमने बहू को बासी खाना खिलाया, किस दिन उससे उपवास कराया, ये तो हमें बदनाम कर रही है। आज एक फकीर को कहा, कल समाज वाले को कहेगी। तो बड़ा गुस्सा आया और बड़ा गुस्सा आकर के उसके समधी को फोन करके कहा, आप अपनी लड़की को ले जाइए, हमें नहीं चाहिए, ये तो हमें बदनाम कर रही है।
पिता बड़ा कंफ्यूज हो गया कि मेरी बेटी इतनी संस्कारी है, वो ऐसा वैसा तो कुछ करेगी नहीं, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आज का युग नहीं था, नहीं तो माँ बाप जाके लेके भी आते थे बिना सत्य जाने। लेकिन वो जमाना था जब कहा जाता था कि डोली जाएगी और अर्थी निकलेगी। तो पिता बड़ा परेशान हो गया कि क्या हो गया। आखिर जब उसको कोई रास्ता नजर नहीं आया तो गांव में पंचों के पास गया कि आप लोग तो मेरी बेटी को जानते हो, मेरी बेटी कितनी संस्कारी है। हाँ संस्कारी तो है, क्या हुआ? कहा उसके ससुर का फोन आया कि बेटी को ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। तो पंचों ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, काम करते हैं सेठ जी कोई बुला लेते हैं, पूछते हैं भाई ऐसा क्यों कहा। सेठ जी को बुलाया कि भाई ऐसा क्यों कहा, लड़की ने ऐसा क्या कर दिया, ये लड़की तो बड़ी संस्कारी है, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकती है। तो जब सेठ जी को ये बात बताई तो कहा कि अरे नहीं नहीं, एक फकीर आया, उसको कहा कि बासी खाना खा रहे हैं और कल उपवास करेंगे। किस दिन हमने बासी खाना खिलाया, किस दिन उससे उपवास कराया, ये तो हमें बदनाम कर रही है। आज फकीर को कहा, कल समाज वाले को कहेगी तो हमारा क्या रहेगा। अगर ऐसा कहा है तो गलत बात है। एक काम करते हैं, लड़की को ही बुलाते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। लड़की को बुलाया कि भाई तुमने ऐसा क्यों कहा कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। तो बड़ी विनम्रता के साथ उसने हाथ जोड़ के कहा कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन वो फकीर जो आया था उसने कहा 3 जन्म का भूखा, कुछ दे दो। उसके जवाब में मैंने ये बात कही। तो 3 जन्म का भूखा हूं ये जो कहा, तो उसका भाव ये था कि भाई पहले जन्म में उसके पास होगा या नहीं होगा क्या मालूम, वो दान ही नहीं कर पाया। जब दान ही नहीं किया तो दूसरे जन्म उसके कर्म में खाते में कुछ था ही नहीं, पुण्य जमा ही नहीं था, तो फकीर बना। अब फकीर बना तो उसमें भी कुछ नहीं था जो दे सके, तो ये जन्म भी फकीर का हो गया एकदम। तो वो ये कहना चाहता था कि 3 जन्म से ऐसा चल रहा, इस जन्म में कुछ ऐसा दे दो ताकि मैं भी कुछ दान पुण्य करूं और अपने भविष्य को सुधार लूं। और अब हमारे घर में ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना है। इसीलिए मैंने उसको कहा कि ये जो तुम महल देख रहा है, बंगला, गाड़ी, मोटर सब देख रहा है, ये पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए का फल है जो भोग रहे। तो बासी खाना खा रहे, लेकिन इस जन्म में हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अगला जन्म हमें भी तेरी तरह उपवास भी करना पड़ेगा, है ना। तो बासी खाना खा रहे हैं, लेकिन कल उपवास न करना पड़े, कल उपवास न करना पड़े। इतना अच्छा कर्म हम करें, इतना सुंदर कर्म करें, इतना पुण्य का खाता अपना जमा करें जो बहुत अच्छा हो। तो ये 5 बातें नए साल के लिए सकारात्मक परिवर्तन करने की अपने पास गांठ बांध करके रख लो। देखो फिर अगला साल कैसा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी आपका। क्या कहे दीदी जी आपको, आज आपने ऐसी आभा बिखेरी, हर एक रोशन हो गया, आपके तीर ऐसे चले, हर एक मनमुग्ध हो गया। दीदी जी हम आज से ही दृढ़ संकल्प करते हैं कि हमारे विचारों, दृष्टिकोण और भावना और पाने में जरूर थी परिवर्तन लाविसु। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी
परम पिता परमात्मा की अति स्नेही, अति प्रिय, परम श्रद्धे आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी और साथ में आई हुई वर्षा बहन एवं सभा में उपस्थित आप सभी नारी शक्ति। तो सर्वप्रथम तो मैं आप जो नारी शक्ति हैं, नारी शक्ति को नतमस्तक होकर के नमन करती हूँ। दीदी ने इतना सुंदर तो आपको सब सुना दिया। मैं कुछ शब्द बोलूंगी तो मेरे शब्द उस सूरज के समान दीपक को दिखाने के जैसे लगेंगे, क्योंकि इतनी प्रभावशील वाणी, छोटी छोटी बातें जीवन को बदलने की जो आपने सुंदर टिप्स बताई, वो सच में कोई कठिन नहीं है। हम अगर अपना जीवन सुखी बनाना ही चाहते हैं, सिर्फ टॉपिक रख करके एक प्रोग्राम का आयोजन कर लिया, उस आयोजन से ये संभव नहीं हो सकेगा। क्योंकि मैं समझती हूँ यहाँ आप सब जो बैठे हुए हैं, एक नेतृत्व विहीन समाज को आप दिशा दिखाने वाली सभी नारी शक्ति हैं। क्योंकि आज की नारी का जो जीवन है, क्योंकि भगवान ने भी कहा है वंदे मातरम, और अपने शास्त्रों के अनुसार भी अगर देखा जाए तो कहा जाता नारी तू नारायणी। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છે નારી ધારે તે કરી શકે, એ ધારે તો સ્વર્ગ બનાવી શકે ઘરને, અને ધારે તો નર્ક બનાવી શકે છે। એ તો આપણે જાણીએ છીએ ને। तो वास्तव में दीदी ने जो बातें बताई बहुत सिंपल और सहज बात है। जब भी आने वाली परिस्थिति को आप फेस करते हैं, क्योंकि ज्ञान वो टॉनिक है, ज्ञान वो पावर है, वो शक्ति है। अगर आपको वो परिस्थिति को बदलने की शक्ति नहीं देता है तो कम से कम परिस्थिति को पार करने की शक्ति तो अवश्य दे देता है। तो जैसे आपको बताया परिवर्तन में सुन रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि परिवर्तन शब्द जो है वो भी अपने अंदर में अर्थ सूचक है। परिवर्तन, हर कोई जीवन के अंदर में खूबसूरत बनना चाहता है। सुंदरता के लिए ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, न जाने कितने कॉस्मेटिक आइटम ला कर के महंगे महंगे अपने बालों का श्रृंगार, अपने वस्त्रों का श्रृंगार किस लिए करते हैं कि मैं परी जैसी दिखाई दूँ। कैसी दिखाई दूँ? परी जैसी मैं दिखाई दूँ। तो परी जैसे अगर आपको दिखाई देना है या दिखना है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा? अपने वर्तन को चेंज करना होगा। मीन्स कि आपका अपना जो बिहेव है, आपका अपना जो व्यवहार है, सिर्फ और सिर्फ उसको ही चेंज करना होगा। क्योंकि हम आप सब जो है घर गृहस्थ के अंदर में रहते हैं। सिंपल सी बात है। मुझे बहुत सुंदर लगा दीदी ने सरल शब्दों के अंदर जो वाणी की बात बताई कि आप व्यक्ति को कुछ भी ना दो, सिर्फ वाणी से आप उसकी खुश खैरापत पूछ लो, आप उससे कुछ अच्छे शब्द बोल करके उसके समाचार को पूछो। गुजराती गुजरात આપણો જે છે એની અંદર તો સૌ પ્રથમ પહેલી જ મુલાકાતમાં આપણે શું કેમ છો? મજામાં। तो एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ हम कुछ ना दें, सिर्फ नहीं पूछ ले आप कैसे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, हैप्पी हैं। तो रियली वो अगर हैप्पी नहीं होगा ना तो वो आपको हैप्पी दिखाई देने लगेगा और हो जाएगा।
तो वाणी और भाव जो कहा दीदी ने उसको सिर्फ बदल देना है, और किसी से भी मिलना है तो मीठे शब्दों से मिले, मीठी वाणी से, क्योंकि जैसे किसी कवि ने बहुत सुंदर अपने शब्दों के अंदर कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। सुखी जीवन के लिए, शीतल जीवन बनाने के लिए व्यवहार के अंदर वाणी की मधुरता ये बहुत अनिवार्य है। हमारे यहाँ का, हमारी संस्था का, हमारे परम पिता परमात्मा की चाहे श्रीमत कहो, उनके ये सुंदर हमें महावाक्य प्राप्त हुए हैं, धीरे बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो, सारा जीवन बदल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आज के इस यहाँ के प्रवचन से, क्योंकि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल माताएं हैं, आपने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अपने समाज को बदलने के लिए, अपने समाज के अंदर समृद्धि लाने के लिए, सुख शांति लाने के लिए आप सब उस स्टेटस पर बैठे हुए हैं, वो स्टेटस आपको मिला हुआ है। तो इसीलिए आज का ये जो सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है चारों ही संस्थाओं ने मिल करके, तो मैं पुनः आपसे यही अपना निवेदन करना चाहूँगी कि जो 5 टिप्स बहुत सिंपल दीदी ने बताई हैं, क्योंकि आज का जो समय है, लोग क्या कहते हैं, लोगों को सुनना कम लेकिन व्यवहार ज़्यादा देखना पसंद आता है। इसीलिए आपका व्यवहार बदलेगा, आपकी वाणी बदलेगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिक, क्योंकि देखो यहाँ संस्था में आने वाले कई हमारे भाई बहन हैं जो इतना उनके ड्रिंक्स लेते थे, व्यसन लेते थे, ठीक है, कई तो चेन स्मोकर थे, और उन्होंने आज वो सारे व्यसन जब छोड़ दिए तो लोगों को अचंभा लगता है कि ये कैसे छोड़ सके, कैसे संभव हो सका। तो उनका जीवन एक संदेश बन गया। तो इसी प्रकार से आप सभी भी जो सुंदर व्याख्यान आप सबको दीदी के द्वारा सकारात्मक परिवर्तन के लिए मिला है, तो पुनः मेरा आपसे यही निवेदन है, आशा नहीं लेकिन विश्वास रखती हूँ कि आप इस कार्य को करके समाज को आगे लाने का काम करेंगे। तो अपने दिल की शुभ भावना, शुभकामनाओं को अर्पित करते हुए ओम शांति। दीदी का भी दिल से खूब शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे इस मेहसाना शहर के अंदर में आप जैसी विशिष्ट महिलाओं के बीच में आप पधारे और आपने अपने मधुर वाक्यों की सुवास आप सभी के बीच में फैलाई। दीदी का भी पुनः शुक्रिया। ओम शांति। શુક્રિયા દીદી આપનો। સર્વપ્રથમ પરમપિતા પરમાત્માને હું દિલથી ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। दीदी जी, ऋणी रहेगी यह संस्था आपकी। आज आप इस तरह पर पधारे, कल्प वृक्ष बनकर आप आए और चंदन की बाती महका कर जा रहे हो। दीदी जी, आपने आपनो अमूल्य समय अमारी संस्थाने आपी, जीवन जीववानी एक अलग राह बतावी, તે બદલ હું આ સંસ્થા વતી આપનો તહે દિલ से खूब आभार व्यक्त करूँ છું। धन्यवाद। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया।